Hello students, the next application we discussed in the previous lesson the applications of Gauss Gauss theorem. Now we will find out electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell. Spherical shell क्या है, अंदर से खाली होगा और उसके आउटसाइड सरफेस पे चार्ज होगा. So suppose this is the spherical shell having the positive charge over the surface, right? This is the spherical shell and O is the center of this one. Remember, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे capital R is the radius of spherical shell. Okay, and suppose P is a point where we want to find out this electric field due to this shell. Taking P, at this point P, draw the Gaussian surface. This one is the Gaussian surface. Okay, so Gaussian surface को dotted line से हम represent कर रहे हैं. Let us take the radius of this Gaussian surface spherical होगा, तो जो outer sphere बन रहा है Gaussian surface का आपके पास, इसका रेडियस हम स्मॉल r ले लेते हैं. ओके, नाउ कंसीडर ए स्मॉल एरिया एट पॉइंट P. तो एरिया एलिमेंट आपके पास ds जो है वो ds हमारे पास यहाँ आ रहा है. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज ds और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो बीच में एंगल 0 डिग्री होगा. ओके, यहाँ पर ds आउटवर्ड्स तो आएगा ही एरिया वेक्टर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी स्फीयर से बाहर की तरफ होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है. ओके, सो by we are taking here point P. So by Gauss's theorem, total flux will be equal to EDS, E dot product of vector E and ds is equal to Q by epsilon naught. ये लगाना है हमने. So here we are going to discuss the three cases. First we take the sphere, this point outside the spherical shell. Second, on the surface, and another third case we will take inside the shell. पहला पॉइंट हम बाहर लेकर के इसको डिस्कस कर रहे हैं. मेथड तीनों में सेम रहेगा, ध्यान से देखना. एक अगर आपको कर लिया आपने तो तीनों हो जाएंगे. ओके, सो इट इज़ वेरी इजी. यू आर टू फाइंड आउट EDS एट दिस पॉइंट. ओके, सो EDS फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे वैल्यू थीटा की जो वैल्यू है उसको 0 डिग्री पुट करते हैं, तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ EDS ओवर द क्लोज सरफेस, एंड दिस सरफेस इज दिस Gaussian surface. So integration of ds will be equal to Q by epsilon naught. Now integration of ds is the small area element over the Gaussian surface. इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आप तो बाहर वाला जो स्फीयर बन रहा है आपके पास उसका सरफेस एरिया आ जाएगा. यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू आर स्क्वेयर. लेकिन r कौन सा लेना है यहाँ पे? स्मॉल r, बिकॉज इसका जो रेडियस है दिस वन इज स्मॉल r. ओके, so E into 4 pi r square will be equal to Q by epsilon naught. This is E 4 pi r square Q by epsilon naught. तो E की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए. So this will be Q upon
4 pi epsilon naught r square. Rest is mathematics, you can do. Now surface this charge कितना आ रहा है यहाँ पे, Q is equal to sigma into 4 pi r square. Charge is on the shell, spherical shell. तो total charge Q will be equal to surface charge density into 4 pi r square. यानी सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया. एरिया कितना है, 4 pi r square. तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 pi r square. तो Q will be equal to sigma into 4 pi r square. Okay. So after simplifying you will get this value. ये वैल्यूज आप डाल दीजिए. तो E will be equal to Q by 4 pi epsilon r square. और इसकी वैल्यू अगर आप ये डाल देते हैं तो फार्मूला विल बी चेंज्ड टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर. सो दीज टू फार्मूले. तो बेसिकली दिस फार्मूला Q by 4 pi epsilon नॉट आर स्क्वायर हम यूज़ करते हैं. ओके. Electric field due to uniformly charged thin spherical shell at a point outside the shell is such that if the whole charge were concentrated at the center of the shell. किस तरह से बिहेव करता है कि सारे का सारा चार्ज जो है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड हो. ऐसा लगता है कि उस चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है. एक्चुअली सारा चार्ज सेंटर में नहीं होता है, ये आउटसाइड द सरफेस होता है. ओके. नाउ वी विल टेक द अनदर केस. वी विल टेक द पॉइंट नाउ ऑन द शेल. अब जो पॉइंट हमने लेना है वो शेल पे लेना है. ओके. सो ऑलमोस्ट द सेम डेरिवेशन. नाउ वी विल टेक दिस पॉइंट ए ऑन द शेल. शेल पे ले लिया. ओके. तो रेडियस तो आर है, कैपिटल आर है, और यहाँ एरिया एलिमेंट हम ले रहे हैं ds. तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और ds की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी. सो अगेन बाय Gauss law, net flux will be equal to dot product of EDS Q by epsilon naught. Total charge is Q. Okay. So same direction, same method you will adopt here. EDS Q by epsilon naught. EDS क्यों कर दिया, EDS cos 0 डिग्री पुट कर सकते हैं आप यहाँ पे. EDS cos 0 डिग्री is equal to Q by epsilon naught. Okay. So यहाँ पे फ़र्क किस में आएगा, उसमें हमने 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिया था. इसमें E एंड दिस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस ds का जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. रेस्ट द फार्मूला इज सेम, बाकी सब कुछ सेम आएगा. सो यू विल गेट E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर. अगेन Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. तो Q की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, कैंसिल करके जो बचेगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है. सो फाइनल आंसर विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट व्हेन यू हैव टेकन द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल. शेल के सरफेस पे जब आपने पॉइंट को लिया है. ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged thin spherical shell at a point on the surface is maximum. सरफेस वाले केस में मैक्सिमम कहाँ होगा, इस when you are taking the point on the surface. Now we will take the third point when we are considering the point inside the shell. अब पॉइंट B ध्यान दीजिए, यहाँ जो पॉइंट B है हमने वो इनसाइड द सेल लेना है. ओके. अब बी पॉइंट पे आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है. बी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से गॉसियन सरफेस इसके अंदर आएगा. अब गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो Q इनसाइड द शेल इज 0. इसमें रेडियस आर डैश ले लिया, सेम मेथड हम लगाएंगे. सपोज दिस आर डैश इज द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस आर डैश एंड स्मॉल एरिया एलिमेंट हम यहाँ पे बी पॉइंट पे ले रहे हैं. अगेन
we will make use of the same theorem. So EDS is equal to Q by epsilon naught. कुछ नहीं करना है इसमें, Q को 0 पुट करना है, रेस्ट इज सेम. ओके, यहाँ देखिए EDS इज इक्वल टू Q by epsilon naught. E और DS का सेम एंगल 0 डिग्री है, सो Q by epsilon naught. सो दिस विल बी Q इज इक्वल टू 0. यहाँ पे DS को इंटीग्रेट करके 4 पाई आर नॉट स्क्वेयर, सॉरी आर डैश स्क्वेयर आ रहा है. आप यहाँ भी वैल्यू डाल सकते हैं सीधे 0 बीस में, तो Q की वैल्यू 0 डाल देंगे, नेट चार्ज अंदर 0 है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल विल बी इक्वल टू 0. शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0. ओके, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल जो है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में भी यूज़ करते हैं, फैराडाइज केजिंग में, जिसमें फैराडे ने बताया था कि चार्ज जो है हमेशा सरफेस पे रहता है, इनसाइड देयर इज़ नो चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के केस में जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा. ये सेंटर है, नो सॉरी ओरिजिन है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस r बढ़ रहा है, ठीक है. सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस पे है व्हेन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r. तो मैक्सिमम सरफेस पे है, और सरफेस के बाहर के आगे जब मूव करते हैं सो इट विल डिक्रीज लाइक दिस. सो यू कैन रिमेंबर दिस वन. सो दिस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 0 इनसाइड ए कैविटी is also used in the electrostatic shielding that I told you. So these three or four cases of applications of Gauss's law are in our syllabus. Okay, sphere is not there, so I request all of you to prepare proper notes and do the practice of all these applications. Thank you.